And some of the accusations he makes in the book are interesting. Now, एक बुक लिखी है किसी ने महात्मा गांधी के ऊपर, उन्होंने जो उसमें कुछ बातें लिखी है उससे बड़ा हंगामा है, सुनिए. he doesn't straight out say that Gandhi was gay, but he says that there are documents that indicate that he might be. Interesting. Now, this is a very touchy subject, obviously, for a lot of people. इस किताब में उन्होंने कहा है गांधी गे थे, फिर कहते हैं ऐसा हो भी सकता है. जो कह रही है मैं उसका ट्रांसलेशन कर रहा हूँ भाई, किसी की भावना बहन आहत ना हो जाए. And I have no idea whether this is true or untrue, but we're going to give you the facts as we know them, okay? And then you make your own decisions. But it's fascinating. Now, the author says that he obtained documents and letters that Gandhi wrote to an architect by the name of Herman Kallenbach. And according हरमन कॉलनबर्ग, उनके लेटर्स जो है उसके आधार पर ये किताब में उन्होंने ऐसा लिखा है. to those letters, he wrote things like this. Your portrait, the only one, stands on my mantelpiece in my bedroom. The mantelpiece is opposite to the bed. Your portrait, the only way, stand on my mantelpiece in my bedroom. The mantelpiece is opposite to the bed. Gandhi to bodybuilder Herman Kallenbach. He continues to write, how completely you have taken possession of my body. This is slavery with a vengeance. How completely you have taken possession of my body. This is slavery with a vengeance. Gandhi ji to bodybuilder Herman Kallenbach. All right, so when he started talking about the mantelpiece, you know, you could attribute it to like they do with Lincoln's letters. No, he really liked that dude, and back in the day, that's how they wrote to each other. And it didn't mean romantic, it just means like, you're my best bud, okay? We're BFFs. And mantelpiece, okay, it's across from the bed, but it doesn't prove much, right? Taking control of my body with a vengeance, we're getting into some interesting territory here. And before she gives you some more of the devastating quotes, let me explain, and this is very important. India's Ministry of Culture looked through these letters and wrote back to the government, it is, quote, the highest priority that we purchase these right away, okay? And they जब इन लेटर्स के बारे में भारत सरकार को पता चला तो भारत सरकार ने ब्रिटेन की सरकार को लिखा, हाईएस्ट प्रायोरिटी उसके ऊपर लिखा गया था. हाईएस्ट प्रायोरिटी, नॉट हाई प्रायोरिटी. एक लिखा होता है प्रायोरिटी, एक लिखा होता है हाई प्रायोरिटी, और एक होती है हाईएस्ट प्रायोरिटी. मतलब बिल्कुल रेड अलर्ट की तरह से जाता है वो दूसरी सरकार के लिए, दूसरे देश के लिए. और उसमें उन्होंने लिखा कि इन लेटर्स को हमको खरीदना है, ये लेटर्स बाहर नहीं जाने चाहिए. रॉबिन जी कहते हैं जी फॉलो डेम मैन वुमन गोट सेक्टर. रॉबिन जी मैं क्या कह सकता हूँ सर, मैं तो वो बता रहा हूँ जो ये कह रहे हैं उसी का ट्रांसलेशन कर रहा हूँ बस हिंदी में. purchased them for $1.28 million so that they wouldn't go in a public auction. Now, they say, hey, listen, we did that because we thought that it's important for the history of India that we have Gandhi's correspondence. Others say, well, are you going to let us see those letters? Probably not. It might be because this is what's in the letters. It also talks about how Gandhi had cotton wool and Vaseline next to his bed, and also that it was a constant reminder of Kallenbach. Because this is what's in the letters. It also talks about how Gandhi had cotton wool and Vaseline next to his bed, and गांधी जी के बेड के करीब में उनकी कैसी किताब में लिखा है लेटर्स में कि वैसलीन और कॉटन वूल रहता था. Also that it was a constant reminder of Kallenbach. Now, why would that? और उससे उनको जो है कॉर्नबर्ग का लगातार रिमाइंड होता रहता था. और कर लो वर्ल्ड वाइड हिंदू रिलीजियस सेंट अब्यूज गांधी जय श्री राम. अब उत्कर्ष जी मैं क्या करूं, जो है सामने मुझे वो ला रहा हूं. That'd be a constant reminder of Kallenbach, but again, it's still supposition, and maybe they use Vaseline, etc. And तो साहब वैसलीन से उनको कॉलनबर्ग की याद आती थी. they आगे सुन लें पहले. हंसने की बात नहीं, बड़ा सीरियस मैटर है भाई. say, hey, listen, we did that because we thought that it's important for the history of India that we have Gandhi's next to his bed, and also that it was a constant reminder of Kallenbach. Now, why would that be a constant reminder of Kallenbach? But again, it's still supposition, and maybe they use Vaseline, etc. in different ways back in the day. Who knows? It gets a little bit more detailed. They nicknamed themselves Upper House, and Kallenbach was known as the Lower House. Okay, now he said निकनेम दिया था एक दूसरे को, अपर हाउस और लोअर हाउस. अब अपर हाउस और लोअर हाउस क्या भी, उसको भी समझ लीजिए. he made the lower house promise not to look lustfully upon any woman. लोअर हाउस को प्रॉमिस करने को बोला था कि किसी औरत के ऊपर लस्टफुली नहीं देखें. And then the two then pledged to each other more love and yet more love. More love and yet more love, such love as they hope the world has not seen. Herman Kallenbach and Gandhi ji. Such love as they hope the world has not yet seen. Okay.
Well, again, it's to your interpretation, and maybe they just really like each other as friends, and it was expressed in a different way back then. When you talk about the bed, and you talk about the Vaseline, and you talk about the upper house and the lower house, the analogies are getting uncomfortable. And now let me be clear: if it is the case that Gandhi was, according to the interpretation of these letters, gay or bisexual or whatever he happened to be, it is obviously our position that who cares? God bless. There's nothing wrong with that at all. And in fact, I think it would be a great testament why you should have gay rights all across the world, because you might be discriminating against the next Gandhi. तो साहब हम ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे। ये इंटरनेट के ऊपर ये वीडियोस वायरल है और ये वीडियो तमाम सारी जगह और मौजूद हैं। इन वीडियोस को देखकर हम भी हैरान हुए। इन वीडियोस को देखकर हम भी हैरान हुए। हमने इसकी सत्यता जांचने के लिए 2012 की एक न्यूज़ निकाली। सन 2012 में हम पीछे चले गए। हमने कहा देखें कि वाकई में इसमें थोड़ी सी भी सत्यता है या नहीं, या फिर ये झूठ है। तो ये सत्यता हमको यहाँ मिल गई मेल ऑनलाइन पर, और ये न्यूज़ भी हमको 2013 जुलाई 2012 की न्यूज़ मिल गई। इंडियन गवर्नमेंट स्पेंड्स £7 लाख टू बाय लेटर्स विच प्रूव नेशनल हीरो गांधी वॉज गे। ये हम नहीं कह रहे सर, ये बता रहे हैं। ये हमारे टैक्स का पैसा 7 लाख पाउंड जो बर्बाद किया गया, ये किससे पूछकर किया गया? सवाल ये है। लेटर्स बिटवीन महात्मा गांधी एंड हरमन कलन are said to shed light on their loving relationship. They are among archives of documents which cover Gandhi's name in South Africa, his return to India, and contentious relationship with his family. Papers were due to have been auctioned at Sotheby's in London this week. तो ये 2012 में ऑक्शन होना था, लेकिन ऑक्शन से ठीक पहले भारत सरकार ने हाईएस्ट प्रायोरिटी का एक लेटर लिखा यूके की सरकार को, और ये कहा कि लेटर ऑक्शन किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए, जो कीमत चाहिए हम देंगे। तो ये ऑक्शन होने की वजह 3 गुनी कीमत पर, या पता नहीं 10 गुनी कीमत पर भारत सरकार ने खरीदे। 7 लाख पाउंड में इन लेटर्स को खरीदा गया और ऑक्शन से इनको हटाया गया। ऑक्शन से ठीक एक दिन पहले इस ऑक्शन को कैंसिल किया गया। अगर ये सब इस प्रकार की नाटक नौटंकी ये लोग नहीं करते, ये इंटरनेट के ऊपर ये लोग नहीं चिल्ला रहे होते मोदी की कार, मोदी का फलाना, मोदी का ठिकाना। एक कार ने आज वैसलीन का ढक्कन खुलवा दिया है, सोचकर समझकर, क्योंकि इतिहास के पन्ने जब पलटे जाएंगे तो उसमें ना मुझे बख्शा जाएगा ना किसी और को। ये वो न्यूज़ है। 7 लाख, हाँ, यानी 60 मिलियन रुपीस में खरीदा गया। 10 लाख का 1 मिलियन होता है। इतने में पेपर्स खरीदेगा साहब। भाई अब जो भी हो, हम तो नहीं कह सकते। लवर्स महात्मा गांधी एंड हरमन कलन sit each other side of a female companion. The Indian government has bought a collection of these letters between 2 men days before they were to be auctioned. ठीक है ना। तो ये हैं साहब, आप जिनको ढूंढ रहे होंगे कि वो कैसे बॉडी बिल्डर थे, ये रहे वो बॉडी बिल्डर भाई साहब, ये रहे आपके महात्मा गांधी। ठीक है, क्लियर है। तो ये वो न्यूज़ है साहब जिसमें ये बताया गया कि ये तमाम सारे वो लेटर्स हैं, हैंड रिटन लेटर्स हैं, जो भारत सरकार ने लिए, जो भारत सरकार के पास होने चाहिए। अब ये मिलेंगे या नहीं ये नहीं मालूम है ना, लेकिन ये होने चाहिए। ठीक है ना। ये तमाम सारी तस्वीरें। तो लोग हंस रहे हैं, मुझे तो खुद को इसको चलाने में मेरे को बड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था। मैंने कहा पता नहीं इसको चलाऊं ना चलाऊं, इतनी सारी इसमें चीज़ें, वैसलीन और ये और वो फलान ढिकान। तो बहरहाल कुल मिला के एक बात तो सच्ची है, इन लेटर्स को भारत सरकार ने खरीदा, 7 लाख पाउंड में खरीदा, ऐसा न्यूज़ में सन 2012। देखिए आज की न्यूज़ होती तो हम एक बार को कहते कि चुनाव होने वाला है, ये न्यूज़ अभी छाप दी गई, गलत छाप दी गई। ऐसा नहीं है सर, ये 9:25 GMT ग्रीनविच मीन टाइम 13 जुलाई 2012 की न्यूज़ है। ठीक है, क्लियर है। तो 12 से आज कितना, लगभग 10 साल पुरानी न्यूज़ हम आपको बता रहे हैं। 22 में हम खड़े हैं, 12 की न्यूज़ बता रहे हैं, लगभग 10 साल पुरानी। तो 10 साल पहले तो नहीं आइडिया था ना कि मोदी आएगा, योगी आएगा, चुनाव होने वाला होगा उत्तर प्रदेश में। ऐसा तो पता तो नहीं होगा ना कि मतलब लोगों को पहले से पता था। हाँ, या फिर हो सकता है कि 1947 से पहले पता, 1900 में पता हो कि ऐसा कभी चुनाव होगा तो मोदी आएगा। वैसा तो वैसलीन का डब्बा रख लो, उसमें लिख दो, लेटर में बता दो कि वैसलीन है, बेड के बगल से रखी, वैसलीन देखकर मुझको तुम्हारी याद आ जाती। तो तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना। कभी भी अतीत को उतना नहीं छेड़ना चाहिए
कि वो नासूर बन जाए किन्हीं लोगों के लिए, किन्हीं लोगों के लिए बन गया है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, यानी अगर वो करेंगे तो सब मंजूर है, कोई दूसरा करेगा तो बड़ी दिक्कत है। गाड़ी में वो घूम सकते हैं, दूसरा नहीं ले सकता। आज इस बात का आखिर चर्चा क्यों? ये चर्चा इसलिए भी आवश्यक हो गई थी क्योंकि हम कांग्रेसियों की बदतमीजियों को काफ़ी समय से देख रहे थे। चड्डी वाले, गे गैंग, आज मालूम चला ये गे गैंग क्यों चिल्ला रहे थे इतना? आज मालूम चला आप लोगों को गे गैंग क्यों चिल्ला रहे थे? क्योंकि दुनिया कुछ और ही बता रही कि गे कोई और था। हम नहीं कह रहे सर, दुनिया कह रही है। वो राइटर कह रहा है सर उसको पकड़ के लाओ, उसको फांसी पे चढ़ा दो, मेल वालों को पकड़ के लाओ, उनको फांसी पे चढ़ा दो। ऐसी न्यूज़ क्यों देते? हेडलाइन में लिखा है नेशनल हीरो वॉज गे। मैं नहीं कह रहा, उनकी हेडलाइन में लिखा है, मैंने पढ़ाया अभी। यार जैसा है वो सबके सामने। तो जो लोग दुनिया के लिए चिल्लाते थे गे गैंग फलाना ढिकाना ऐसा वैसा, आज उनके लिए बड़ी मुसीबत वाला दिन है। खैर, अब ये इसमें क्या सत्यता है क्या नहीं, मैं तो सिर्फ ये भारत सरकार से दरखास्त करूंगा कि भारत सरकार फॉर वंस एंड फॉर ऑल इस पर एक जांच बैठाए, इस पर एक कमीशन बनाए या इस पर एक कमेटी बनाए और इसकी जो भी फाइंडिंग्स है उसको पब्लिक के सामने लाया जाए और खासकर इन लेटर्स को पब्लिक किया जाए। क्योंकि ये लेटर्स कोई ऐसे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इनसे देश का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, कोई देश में युद्ध नहीं हो जाएगा, कोई सीक्रेट नहीं है, ये ओपन लेटर्स है। तो मेरा निवेदन है कि इन लेटर्स को जल्दी से जल्दी भारत सरकार पब्लिक के सामने लाए, इनको बल्कि वेबसाइट पर अपलोड किया जाए ताकि हर कोई इसको पढ़ सके। ऐसा नहीं कि आप म्यूजियम में उनको डाल दो कि हमने तो म्यूजियम में रखा है, नहीं ऐसा नहीं। तो वेबसाइट पर डालिए सर, लोगों को पढ़ने दीजिए। लेट द ट्रूथ कम आउट फॉर गॉड सेक, फॉर हेवन सेक। सच को बाहर आने दीजिए प्लीज। सही है गलत है जैसा भी है, चलो शास्त्री जी का समझ में आता है, शास्त्री जी का भी बहुत टाइम समय हो गया, उसको भी बाहर आना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जी की भी चीज़ें बाहर आनी चाहिए, क्या सत्य है मालूम होना चाहिए देशवासियों को। सुभाष शास्त्री जी के लिए कह दिया जाता है कि भाई उससे दूसरे देश से संबंध खराब हो जाएंगे। अरे सर अब तो बहुत समय हो गया, आपके संबंध खराब होंगे। देश की जनता परिपक्व हो चुकी है, आप इतना टेंशन ना लें। ठीक है, तो अगली बार जब कोई आपको बोले तो आप, ये मैं आपको भेज दूंगा, ये हेडलाइन आपको भेज दूंगा, ये हेडलाइन जरा दे दीजिएगा उनको। दिस विल बी वेरी यूजफुल फॉर देम। ठीक है, खैर, तो यानी वो करें तो कोई दिक्कत नहीं, हम करें तो हर चीज़ में दिक्कत है। श्रद्धा के साथ प्रणाम उमंग शर्मा जी की तरफ। धन्यवाद भैया। तो ये चीज़ें हैं, इनकी सत्यता सामने आनी चाहिए, बहुत आवश्यक है। क्योंकि विदेशों में यदि 10 साल से बात हो रही है तो इट्स हाई टाइम कि हमारे देशवासियों को कम से कम ये मालूम होना चाहिए हमारे हीरोज़ कौन हैं, क्या हैं, वो क्या करते थे, वो क्या हमारे हीरोज़ होने लायक है या नहीं। बिकॉज आई ऑलवेज से, अगेन से, चूज़ योर हीरोज़ वाइजली। अपने लीडर्स को, अपने हीरोज़ को समझदारी के साथ चुनें, बहुत आवश्यक है। ठीक है, कि ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना, उसमें 2 एरो बनकर